Hello everyone, this is Pragati Keshri. I'm CS professional student, and from today I am going to start a new series about the subject RCD, Resolution of Corporate Dispute, Non-Compliance and its Remedies. This subject is from Professional Program Module 2 Paper 6. Today I am going to cover the chapter 1 of this subject RCD, which is about the shareholders democracy. हम इस चैप्टर को आज पूरा कवर करेंगे ताकि मैं जब इस हर चैप्टर वाइज रिवीजन करूँ तो मुझे एक क्विक रिवीजन मिले सारे चैप्टर्स कवर इन 10 to 15 और मे बी अगर चैप्टर्स लंबे हुए तो 20 मिनट्स, ताकि मैं चैप्टर को गो थ्रू कर सकूँ ईजी में. So the RCD chapter 1 is shareholders democracy. डेफिनेशन क्या है शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी की? क्या है कि डेमोक्रेसी मीन्स रूल्स ऑफ पीपल बाय पीपल एंड फॉर द पीपल, एंड शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ शेयरहोल्डर बाय शेयरहोल्डर एंड फॉर शेयरहोल्डर्स. दे आर टू डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज, दो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयरहोल्डर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक डिसीजन थ्रू बोर्ड मीटिंग, वो बोर्ड मीटिंग के थ्रू डिसीजन लेते हैं, एंड शेयरहोल्डर्स टेक डिसीजन थ्रू जनरल मीटिंग. डायरेक्टर्स आर आंसरेबल टू शेयरहोल्डर्स ड्यू टू टू रीजंस. डायरेक्टर्स जो होते हैं आंसरेबल होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है टू आंसरेबल टू शेयरहोल्डर्स फॉर टू मेन रीजंस. दीज आर शेयरहोल्डर्स बीइंग द इन्वेस्टर, वो एक इन्वेस्टर है जो जानना चाहेगा कंपनी की इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी, जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. शेयरहोल्डर जानना चाहते हैं कि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है. लॉ रिकॉग्नाइज द शेयरहोल्डर्स एज ओनर एंड ऑफ कंपनी एंड डायरेक्टर्स एज एजेंट. लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है शेयरहोल्डर्स को एज अ ओनर ऑफ कंपनी एंड डायरेक्टर को टू वर्क एज अ एजेंट. Now the rights of shareholders or decisions taken by the shareholders. Decision that can be taken by the shareholders, these are the follows. Right to appoint directors, remove directors, appoint auditor, transfer uncalled portion of capital to reserve capital, which can be called upon at the time of wind up. जो wind up के टाइम जो uncalled capital होते हैं, जो reserve capital में उससे ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उसे wind up के टाइम पे उसे वापस मंगाया जा सकता है. Shifting of RO from one state to another, change object of company, alter share capital and alter memorandum of association and article of association, alter of MOA and AOA. Right to apply to NCLT for calling general meeting, right to apply NCLT against operation and mismanagement, NCLT for winding up, right to apply to CG for investigation in affairs of company, change name of company, to receive dividend if declared, appoint proxy in general meeting, right to approve borrowings more than paid up share capital plus free reserve plus securities premium, right to approve LIGS loan investment guarantee security, right to approve related party transactions, right to approve directors remuneration, right to approve directors manager KMP holding office or place of profit, right to approve sale or disposal of undertaking under section 180 subsection Section 1 and Clause A. Now comes the rule of non-interference, which comes under the landmark judgment of Foss versus Harbottle. The court will not interfere, court interfere नहीं करेगी in the internal administration and management of company. कंपनी का जो internal administration और management है, court इसमें interfere नहीं करेगी. कब? जब action is brought up by company itself through majority of shareholders. जो majority of shareholders के द्वारा जो भी act किया गया है, उस पर court interfere नहीं करेगी कंपनी के internal administration and management में. Facts क्या थे landmark judgment के कि two shareholders थे, Foss and Taton, who were minority shareholder in the Victoria Park Company, filed the suits against the directors of company alleging that directors have disposed of the property of company against company interest. Foss and Taton जो शेयरहोल्डर थे, जो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर थे विक्टोरिया पार्क कंपनी ने, उन्होंने सूट फाइल की डायरेक्टर के अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाते हुए कि डायरेक्टर्स ने कंपनी की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया है अगेंस्ट कंपनी इंटरेस्ट के अगेंस्ट में उसको डिस्पोज ऑफ किया है. द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रॉपर प्लेंटिफ विल बी द कंपनी इटसेल्फ. जो प्रॉपर प्लेंटिफ होगी वो कंपनी होगी, और द सूट विल ओनली बी एंटरटेन, वो सूट तभी मानी जाएगी जब वो फाइल की गई हो कंपनी के द्वारा या तो उसके मेजॉरिटी ऑफ शेयरहोल्डर्स के द्वारा. इफ मेजॉरिटी डिड नॉट फाइंड इट अगेंस्ट कंपनी इंटरेस्ट, अगर मेजॉरिटी को कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं लगा, तो कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड दस सूट फाइल्ड बी माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स वर डिसमिस्ड. अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयरहोल्डर्स को लगा कि ये कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है, तो कोर्ट कंपनी के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट वाले अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगी, और जो सूट फाइल की गई है माइनॉरिटी शेयरहोल्डर के द्वारा वो डिस्कस हो जाएगी. Now about the advantage of the landmark judgment in Foss versus Harbottle. It promotes company as a separate legal entity or protects the interest of majority shareholders and prevent multiplicity of cases. It promotes the company as a separate legal entity का मतलब है कि any action can be brought only by company acting through majority of its shareholders if things are done against company interest. It means कि जो separate legal entity है कंपनी का, उससे वो प्रमोट करती है, और कोई भी एक्शन brought up किया जाएगा कंपनी पे through its majority of shareholder and things are done against company. If things are done against company's interest, अगर कोई भी चीज़ कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ हो रही है, तो कोई भी एक्शन उसके मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स के द्वारा ही लिया जाएगा, जो कि प्रमोट करता है कंपनी को एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इट प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स merely because minority shareholders think that the particular action is against company interest, they cannot usurp the right and decisions taken by majority shareholder. It means कि अगर कोई चीज़ minority shareholders की थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो कंपनी के अगेंस्ट में है वो एक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि जो मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स ने जो डिसीजन लिया है वो गलत है, जो वो उनकी राइट्स को अनसर्व नहीं कर सकते. दे कैन नॉट अनसर्व द राइट्स एंड डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स. उनको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि मेजॉरिटी ने जो डिसीजन लिया है वो ओवरऑल सबके हित में लिया है. मिनॉरिटी सिर्फ सोच नहीं सकता कि अगर कोई चीज़ कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है तो वो सही है. हमें मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है.
to prevent the multiplicity of cases in court and tribunal, because otherwise every time some minority shareholders or other will always file a suit against decision taken by majority shareholders or against decision taken by directors supported or rectified by majority shareholders. मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस का मीन्स है कि हम ये ज़्यादा मतलब कि जो जब तक माइनॉरिटी शेयर होल्डर को ये लगे कि कोई ना कोई चीज़ गलत है, एवरी टाइम माइनॉरिटी शेयर होल्डर को लगे कि वो फाइल करने लगेगा अगर केस, तो कोर्ट और ट्राइब्यूनल में बहुत ज़्यादा केसेस हो जाएंगे बहुत छोटे छोटे पॉइंट पे जो कि मैटर ही नहीं करते हैं। तो उसको बचाने के लिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस को बचाने के लिए ये फॉस वर्सेस हॉरिजॉन्टल के रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को अडॉप्ट किया जाता है। इट सेव द कंपनी एंड डायरेक्टर फ्रॉम अननेसेसरी हार्डशिप ऑफ लिटिगेशन। सेम इससे कनेक्टेड है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस नहीं होंगे तो ज़्यादा हार्डशिप नहीं होगी लिटिगेशन के में। सेव द कंपनी एंड डायरेक्टर्स फ्रॉम द अननेसेसरी हार्डशिप्स ऑफ लिटिगेशन। एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ फॉस वर्सेस हॉरिजॉन्टल, ये 7 एक्सेप्शंस हैं। अल्ट्रा वायरस एक्ट, इनके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अल्ट्रा वायरस एक्ट, फ्रॉड, ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, पर्सनल राइट डिप्राइव्ड हुई हो, रॉन्ग डूवर्स इन कंट्रोल आए हो या फिर प्रॉपर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ हो। Now the majority powers and minority rights. The general rule of administration of affairs of company is that the will of majority shall prevail and binding upon company and minority shareholders. जो majority ने will जो propose की हो वही prevail होगी और binding होगी company पे और minority shareholder पे. The above rule is subject to 2 limitations. इनकी 2 limitations है. The decision taken by majority should be within the scope of MOA and AOA of company. Otherwise it is not binding and ultra virus. इसने तो ये बोल दिया कि majority की will prevail करेगी company के ऊपर और minority shareholder के ऊपर. इसकी 2 लिमिटेशन है कि वो जो डिसीजंस टेकन, जो मेजॉरिटी डिसीजंस ले रहे हैं वो स्कोप ऑफ एमओए और एओए ऑफ कंपनी होना चाहिए, नहीं तो वो बाइंडिंग नहीं होगा और वो अल्ट्रा वेरियस हो जाएगा। एक केस लॉ है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। इट शुड ऑल्सो नॉट वायलेट द एक्ट और एनी अदर स्टैट्यूट एंड ऑल्सो शुड नॉट बी एन ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और फ्रॉड विद देम। वो कोई एक्ट को या फिर किसी स्टैट्यूट को वायलेट नहीं कर रहा हो और वो एक ऑपरेशन नहीं हो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पे जो कि फ्रॉड करे उसके साथ, या तो वो स्कोप ऑफ वो एमओए एओए और वायलेट ना कर रहा हो कोई एक्ट और स्टैट्यूट। ये था एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन लिमिटेड वर्सेस रिचे केस लॉ में। सेकंड केस लॉ एडवर्ड वर्सेस हालीवेल। शेयर होल्डर्स राइट टू वोट इन हिज प्रॉपर्टी ऑल्सो इफ एनी रेजोल्यूशन रिक्वायर एसआर बट पास बाय ओआर देन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कैन चैलेंज इट। मतलब शेयर होल्डर्स का राइट टू वोट है, जो उसको राइट दिया गया है वोट करने का, वो उससे नहीं छीन सकते। और जिस रेजोल्यूशन के लिए एसआर की जरूरत हो लेकिन वो ओआर से पास हो गई तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, उनका यहाँ पे राइट जो होता है वैलिड कहलाएगा। Now the third case law, Northwest Transportation Company versus Beatley. Any decisions taken by majority shareholders by passing appropriate resolution relating to internal administration of company is binding on company and minority shareholders and court and tribunal will not intervene. वही है कि अगर कोई मेजॉरिटी डिसीजन प्रॉपर रेजोल्यूशन के द्वारा अगर वो कहते हैं रिलेट की गई हो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पे तो वो बाइंडिंग है कंपनी पे और माइनॉरिटी शेयर होल्डर पे और कोर्ट और ट्राइब्यूनल उस पर इंटरवीन नहीं करेगा। अब कुछ इंडियन केस लॉज हैं जो सपोर्ट करते हैं फॉस वर्सेस हॉरिजॉन्टल को। Rajamundra Electric Supply Company versus Nageshwara Rao. Supreme Court held that company will generally not intervene if decisions regarding the internal administration and management of company taken by majority shareholder within the scope of MOA and AOA, then minority shareholder generally cannot do anything about it other than to follow. ये वही चीज़ बार बार रिपीटेड है, लेकिन ये इंडियन केस लॉज है जो कि सपोर्ट करता है फॉस वर्सेस हॉरिजॉन्टल को, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कंपनी कोर्ट जनरली इंटरवीन नहीं करेगा कंपनी के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में। अगर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने डिसीजन लिया गया है वो स्कोप ऑफ एमओए एंड एओए लिया गया है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर कुछ नहीं कर पाएगा जस्ट उसको फॉलो करने के अलावा। Pavlidis वर्सेस जेंसन केस लॉ में दिया गया है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स सूड 3 डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी एंड कंपनी एलिजिंग, मतलब कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने 3 डायरेक्टर्स और कंपनी को सू फाइल किया और एली किया कि एलिगेशंस लगाए दैट दे सोल्ड द माइन एट द रेट 82,000 euros वेयर द रियल वैल्यू ऑफ द माइन वाज 10 लाख euros. Court dismissed this suit on the grounds that there were no obligations from majority shareholders who approved it. Minority share पैवलिडिस वर्सेस जेंसन केस लॉ में कहा गया कि शेयर होल्डर्स ने उनके 3 डायरेक्टर्स और कंपनी पे ये एलिगेशंस लगाए कि जो उन्होंने माइन सोल्ड की है उसकी रियल वैल्यू 10 लाख यूरोज थी, उन्होंने 82,000 यूरोज में उसको सेल कर दी। कोर्ट ने ये सूट को डिसमिस कर दिया ये ग्राउंड पे कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स द्वारा ये अप्रूव किया गया था और ये डिसीजन मेजॉरिटी शेयर होल्डर का है तो कोर्ट इसके में इंटरवीन नहीं करेगी। Now the Gray versus Lewis case laws में if any wrongdoing is claimed which is against company's interest, the proper petitioner will be the company instead acting through majority shareholders. अगर कोई wrongdoing claim हुई है अब against the company तो उसका proper petitioner company ही होगा जो act कर रहा होगा majority shareholders के through. Held by Delhi High Court in the case of ICICI versus परस रमपुरिया सिंथेटिक कंपनी लिमिटेड। इस केस लॉ में ये हेल्ड हुआ था दैट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्सेस हॉरिजॉन्टल इन इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में बी अनजस्ट। मतलब डायरेक्टली हम फर्स्ट वर्सेस हॉरिजॉन्टल को इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में हम उसको नहीं मतलब फॉलो अप कर सकते, ये अनजस्ट होगा। स्पेशली कहाँ विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट वर्सेस हॉरिजॉन्टल केस लॉ को फॉलो अप करना थोड़ा अनजस्ट होगा। हु ऑल्दो डज नॉट, वो ऐसे तो होल्ड मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स नहीं कर रहे होते हैं बट प्रोवाइड कर रहे होते हैं बल्क फाइनेंस। हु ऑल्दो डज नॉट होल्ड मेजॉरिटी शेयर्स बट प्रोवाइड बल्क फाइनेंस, दे कैन नॉट बी मेड वॉयलेस एंड कंप्लीटली इग्नोर्ड। इसके
इसके कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट फोर्स वर्सेस हॉरिजॉन्टल का इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हम फॉलो नहीं कर सकते इस केस लॉ का, स्पेशली इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर बल्क में फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि उनकी मेजॉरिटी होल्डिंग हो किसी कंपनी में, और उन्होंने अगर बल्क में फाइनेंस लगाया है तो उनकी मतलब उनके राइट्स को दबा नहीं सकता, या फिर उनके पॉइंट्स को इस बेसिस पे नहीं दबा सकते क्योंकि वो माइनॉरिटी है, तो उनकी वॉइस मतलब कि उनके हक को या तो उनकी बात को दबाया नहीं जा सकता, उनकी बात को माना जाएगा या तो उनको पॉइंट टू बी हर्ट दिया जाएगा। Now the last point of this chapter, explanation of 7 exceptions to the rule of first versus horizontals. वो 7 exceptions हैं with the case laws. Ultra vires act, if directors have acted ultra vires, then even a single shareholders will be maintained by a court. अगर डायरेक्टर्स ने कोई भी ऐसा काम किया है जो कंपनी के MOA और AOA के अगेंस्ट है, इट मीन्स अल्ट्रा वायरस है, देन एक सिंगल शेयर होल्डर भी मेंटेन कर सकता है कोर्ट को, मतलब सूट फाइल कर सकता है कोर्ट को, और कोर्ट को वो सूट एंटरटेन करनी पड़ेगी। हेल्ड इन द केस ऑफ भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैयालाल, The object of company was to advance money for interest against security of land and building, machinery, property, etc. मतलब कंपनी के ऑब्जेक्ट में था कि वो मनी एडवांस करेगी फॉर इंटरेस्ट अगेंस्ट किसी सिक्योरिटी के ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और प्रॉपर्टी, लेकिन वन ऑफ द शेयर होल्डर्स फाइल किया सूट सीकिंग परमानेंट इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग अनसिक्योर्ड लोन ऑन द ग्राउंड दैट कंपनी मेड सेवरल लोन्स इन्वेस्टमेंट विदाउट सीकिंग एनी सिक्योरिटी। द कोर्ट हेल्ड दैट रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी डज नॉट फॉल इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड दिस एक्शन ऑफ कंपनी बीइंग अल्ट्रा वायरस इवन सूट फाइल्ड बाय अ सिंगल शेयर होल्डर्स विल बी एक्सेप्ट और एंटरटेन। मतलब कहने का मतलब था कि कंपनी के MOA और AOA में लिखा था कि कंपनी एडवांस करेगी मनी फॉर इंटरेस्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी, लेकिन एक शेयर होल्डर्स ने ये सूट फाइल किया परमानेंट इंजेक्शन के लिए ताकि वो कंपनी को रोक सके फ्रॉम प्रोवाइडिंग अनसिक्योर्ड लोन। वो कोई अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा रही है कंपनी को और उसने सेवरल लोन्स और इन्वेस्टमेंट दे चुके हैं विदाउट सीकिंग एनी सिक्योरिटी। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये रॉन्ग एप्लीकेशन है ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी। कंपनी का एसेट क्या था, क्योंकि वो कंपनी का मेन एसेट तो ये है ना कि वो मनी एडवांस कर रही है, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो कंपनी का रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ एसेट हो रहा है जो कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में फॉल नहीं करती है, तो ये एक्शन कंपनी का अल्ट्रा वायरस है और सूट जो फाइल की गई है सिंगल शेयर होल्डर के द्वारा वो उसे कोर्ट एंटरटेन करेगा और एक्सेप्ट करेगा। The second exception is fraud on minority. If any fraud is done on minority by the minority shareholders, then even an individual shareholders can file a suit held in the case of Minier versus Hooper Telegraph Work Company. Majority shareholders मतलब अगर कोई fraud किया गया हो minority के ऊपर तो minority shareholders even an individual can a suit in the मतलब एक इवन सिंगल माइनॉरिटी शेयर होल्डर सूट फाइल कर सकता है। ये मिनियर वर्सेस हुपर टेलीग्राफ वर्क कंपनी के लॉ में हेल्ड किया गया था कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी पास द रेजोल्यूशन टू कॉम्प्रोमाइज डेट व्हिच वाज रिसीवेबल फ्रॉम कंपनी ए इन विच मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ए वर द शेयर होल्डर्स। इसके कहने का मतलब है कि कंपनी ए ने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया कि वो डेट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मतलब नलीफाई कर दिया, जो कि रिसीवेबल था कंपनी बी से, कंपनी बी से उसको लेना था, और उस कंपनी बी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ ए के शेयर होल्डर ऑफ बी है, मतलब शेयर होल्डर ऑफ मतलब एक कंपनी के शेयर होल्डर्स उस कंपनी के शेयर होल्डर्स भी हैं जिस कंपनी को ए ने लोन दिया था, और उस लोन को अगर बी पे ऑफ नहीं कर पाया तो ए ने उसको नलीफाई कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया डेट को। इट वॉज डन इन द फेवर ऑफ कंपनी बी, उस कंपनी बी के फेवर में हुआ, एंड इट वॉज अ फ्रॉड विथ माइनॉरिटी। मतलब उसमें मतलब ए के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स बी के भी शेयर होल्डर्स थे, और ए ने जो बी को लोन प्रोवाइड किया उस बी ने उसे पे ऑफ ही नहीं किया, और ए ने मतलब उस कंपनी के हित में उस डेट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, नलीफाई कर दिया। तो जो ए के माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे उनके साथ तो फ्रॉड हो गया, फ्रॉड विद द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी ए, एंड सो सूट फाइल बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ए वाज मेंटेनेबल। मतलब जो सूट कंपनी ए फाइल करेगी बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ए फाइल करेगी वो मेंटेनेबल होगी। एलन वर्सेस गोल्ड रीफ ऑफ वेस्ट अफ्रीका, इस केस लॉ में ये था, देयर इज नो क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड डन ऑन माइनॉरिटी। ऐसी तो कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है फ्रॉड की, बट टू वेदर इट इज अ फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी और नॉट, कोर्ट विल चेक। ये फ्रॉड है कि नहीं है ये कोर्ट चेक करेगा, ये डिसाइड करेगा वेदर रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी वाज बोनाफाइड फॉर कंपनीज इंटरेस्ट एज अ होल और नॉट। ये कोर्ट चेक करेगा कि वो माइनॉरिटी के ऊपर फ्रॉड है भी कि नहीं है, और जो रेजोल्यूशन पास किया गया है मेजॉरिटी के द्वारा वो बोनाफाइड फॉर कंपनी, मतलब वो बोनाफाइड है कि नहीं कंपनीज इंटरेस्ट के ऊपर एज अ होल और नॉट। The third exception is the wrongdoers in control. Wrongdoers जब control में हो, when the wrongdoers are the person having majority shares, then they will never bring an action against such wrong. Hence minority shareholders can bring a suit in such case. Hence minority shareholders can bring a suit in such cases. इसके कहने का मतलब है अगर majority और shareholders ही wrongdoers हो तो वो कभी उस action के ऊपर step ही नहीं लेंगे जो उन्होंने गलत की हो। तो minority shareholders के पास वो right आ जाता है कि वो एक suit फाइल करे और कोर्ट उसे entertain करेगी in such cases. इसका केस लॉज है ग्लास वर्सेस एटकिंस। टू शेयर होल्डर्स हैविंग मेजॉरिटी शेयर्स कन्वर्टेड कंपनीज एसेट इनटू देयर पर्सनल एसेट्स, मिनॉरिटी शेयर होल्डर कैन ब्रिंग अ सूट। इसका मतलब है कि दो शेयर होल्डर थे जो मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड कर रहे थे और उन्होंने कंपनी के एसेट्स को अपने पर्सनल एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स इस केस में एक सूट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट उसे एंटरटेन करेगा। द फोर्थ एक्सेप्शन इज रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड एसआर, इट मींस स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। If a resolution requiring special majority was passed by a simple majority, then minority shareholders can sue. मतलब जिस रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल एसआर की जरूरत है, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है, वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करा दिया गया, तो ये अगर इसके खिलाफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अगर सूट फाइल करते हैं तो कोर्ट उसे एंटरटेन करेगी। Now the fifth exception is the personal action. If a shareholder's personal right not given, then even though he is a minority, he can sue.
मतलब अगर शेयर होल्डर्स की पर्सनल राइट को डिप्राइव किया गया, तो उसकी पर्सनल राइट, जो हमने राइट्स इतने सारे पढ़े थे, शेयर होल्डर्स की राइट को डिप्राइव किया गया, उसे नहीं प्रोवाइड किया गया, तो एक सिंगल माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी सूट फाइल कर सकता है। ये किस केस लॉज में दिया गया है? एन चेट्टियार वर्सेस मद्रास रेस क्लब। An individual shareholders, if not given the notice of general meeting, has a right to bring a suit। मतलब एक शेयर होल्डर का राइट है टू हैव दी नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, और एन चेट्टियार वर्सेस मद्रास रेस क्लब में उस शेयर होल्डर्स को नोटिस ही नहीं मिली जनरल मीटिंग की, तो उसके पास राइट बनता है कि वो सू कर सके कंपनी को। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इफ डायरेक्टर्स हु आर ऑल्सो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स have breached their duty to earn secret profit, then minority shareholders can sue। मतलब अपनी ड्यूटी को ब्रीच करना, जो डायरेक्टर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट, देन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स उसको सू कर सकते हैं। ये था केस लॉ में डैनियल वर्सेस डैनियल। टू डायरेक्टर्स हैविंग मेजॉरिटी शेयर्स एंड रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, वो उनकी रिलेशन हस्बैंड और वाइफ थे, ट्रांसफर्स कंपनीज प्रॉपर्टी टू वन ऑफ द डायरेक्टर्स हु वाज द वाइफ फॉर अंडर वैल्यूड अमाउंट ऑफ €4,250 एंड लेटर द वाइफ डायरेक्टर सोल्ड इट फॉर €1,20,000। इट वाज हेल्ड बाय कोर्ट द मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स कैन ब्रिंग अ सूट। इसके कहने का मतलब ये है, दो डायरेक्टर जो मेजॉरिटी थे और दोनों का रिलेशन हस्बैंड और वाइफ था, हस्बैंड ने वाइफ को कंपनी की एक एसेट सेल कर दी लेस अमाउंट में, और कंपनी ने उसकी वाइफ ने फर्दर वही एसेट को हायर अमाउंट में बेच के एक सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स उसके अगेंस्ट एक सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट वर्सेस हर्बोटल का रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। नाउ द सेवेंथ एंड द लास्ट एक्सेप्शन, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। किसी भी शेयर होल्डर के ऊपर उसके ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के लिए प्रिवेंट करना। हेल्ड इन द केस ऑफ बेनेट कोलमैन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, माइनॉरिटी शेयर होल्डर कैन ब्रिंग अ सूट टू एंड ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। माइनॉरिटी शेयर होल्डर एक सूट फाइल कर सकते हैं ताकि वो एक ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में एंड ला सकें। सच प्रोविजन ऑल्सो एग्जिस्ट अंडर सेक्शन 241 एंड 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नाउ दी टू बोर्ड ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स की टू बोर्ड ड्यूटीज क्या है, ये एक मॉड्यूल का पार्ट था। टू मैनेज द कंपनी एट अटमोस्ट स्किल एंड केयर, उसको अपने अटमोस्ट स्किल एंड केयर से कंपनी को मैनेज करना है। एंड टू बोनाफाइडली रन द कंपनी विदाउट अर्निंग सीक्रेट प्रॉफिट, और उसे बोनाफाइडली कंपनी को रन करना है बिना सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किए। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 1 ऑफ RCD विच इज शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। हमने इसमें पूरे चैप्टर को कवर किया है, पूरा मॉड्यूल के सारे पॉइंट्स मैंने इसमें गो थ्रू किए हैं। सो दिस इज द क्विक रैप अप ऑफ द चैप्टर 1। होप मैं ऐसे सारे जितने टोटल इसमें 9 चैप्टर्स हैं इस सब्जेक्ट में, तो हम एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, ताकि हम जब RCD का रिविजन करें तो हमें बहुत ही कम टाइम लगे इसे पूरा कंप्लीट करने में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लिंक टू दिस नोट्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe to my channel for more content like this, and thank you।